Welcome you friend. In this video we will going to discuss about various disease of tobacco such as black sank, black root rot and mosaic. So start करते हैं. Black sank of tobacco. The disease is caused by Phytophthora parasitica nicotiana. Coming to the symptom, black sank affect every type of tobacco like Nicotiana, Tobacum, Nicotiana, Benthamiana. In nursery, the affected seedling shows blackening of roots and stem near soil. Under wet condition, it also affects the leaves. In the field, blackening starts at the collar region and spread both downward and upward, causing the rotting and necrosis of whole stem. In severe condition, yellowing of leaves, sudden wilting and death of the plant under warm weather. Disease appear in scattered patches in field. When we cut open the stem, it shows the blackening of the pith. इजी लैंग्वेज में समझते हैं. जब नर्सरी में प्लांट छोटा सा होता है तो सॉइल के पास ब्लैकनिंग स्टार्ट होता है और ये ऊपर और नीचे मूव करता है और ये जो लोअर लिप्स होते हैं वहाँ भी इन्फेक्शन करता है. और हम अगर इस इन्फेक्टेड स्टेम को कट करके देखेंगे तो हमें इसका जो पिथ है वो डार्क कलर का दिखाई देता है. ये जैसे दिख रहा है, ये लीफ में इन्फेक्शन, ये स्टेम में इन्फेक्शन. जब इस इन्फेक्टेड स्टेम को हम कट करके देखेंगे तो ये ब्लैकनिंग दिखाई देता है और इसमें ये जो माइसीलियम है फंगस के वो भी दिखाई देते हैं. कमिंग टू द इटियोलॉजी, दिस इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा which is a lower fungus. So it has non-septate hyaline mycelium. It also produces sporangiophore and sporangia. The sporangiophores are unbranched and sporangia are single-celled hyaline round to oval. Sporangia germinate and produce juice spores. Here you can see this is sporangia and these are the juice spores. A single sporangia can produce 30 to 50 juice spores. The fungus also produce oospores and chlamydospores. Coming to the disease cycle, the pathogen survive in soil weed host as oospores. फिर ये कहाँ इन्फेक्शन करते हैं? लिप्स में और सीडलिंग्स में. सिम्टम डेवलप होता है, फिर से ये फंगस स्पोरेंजिया बनाता है, स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स निकलते हैं. ये जो जूस स्पोर्स होते हैं ये विंड से या फिर रेन के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचते हैं, फिर ये वहाँ इन्फेक्शन करते हैं. बाद में ये वीड्स में और कोलेटरल होस्ट में भी इन्फेक्शन करते हैं. सीजन के लास्ट में ये oospore बनाता है और जो कि सॉइल में सर्वाइव करता है. Coming to the epidemiology, Phytophthora require 20 to 24 degree centigrade temperature, more than 90% RH, cloudy days, intermittent rain, dense cropping and poor drainage of soil is favorable for the pathogen. Coming to the management of the disease, it can be checked by drenching the seed bed with 0.4% Bordeaux mixture. Further application of fungicides like copper oxychloride. At the time of transplanting, we should discard the seedlings which is showing the symptom. Sanitation of the field, and also we can spray 0.2% mancozeb at leaf blight phase. Coming to black root rot, this is caused by Thelaviopsis basicola. Coming to the symptom,
ये जो डिजीज़ है इसमें 2 टाइप के सिम्टम आते हैं, एबव ग्राउंड सिम्टम और बिलो ग्राउंड सिम्टम। एबव ग्राउंड सिम्टम है क्लोरोसिस, डिफोलिएशन, स्टंटिंग एंड विल्टिंग। मतलब जो पौधा होता है उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसके पत्ते मैच्योरिटी से पहले गिर जाते हैं, पौधे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है रुक जाता है और उसमें विल्टिंग हो जाती है। मतलब प्लांट ऐसा दिखता है जैसे कि उसमें पानी की कमी है। बिलो ग्राउंड सिम्टम है वो रूट टिश्यू में आता है। उसमें क्या होता है, ब्लैकनिंग हो जाती है, ब्लैक कलर के लीजन्स आते हैं। ये जो लीजन्स हैं वो पूरे रूट सिस्टम में फैल जाते हैं और पूरा रूट जो है ब्लैक कलर का हो जाता है। ये देखिए, ये है सिम्टम। ये पूरा जो रूट है वो ब्लैक हो गया है। कमिंग टू द etiology, the pathogen is soil borne and belong to phylum Ascomycota। एस्कोमाइकोटा मतलब इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है वो एस्कस बनेगा। कोनिडिया, इसमें 2 टाइप के कोनिडिया बनते हैं, इंडोकोनिडिया एंड एल्यूरोस्पोर। इंडोकोनिडिया है दिस इज ऑल्सो नोन एज फियालोस्पोर और ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड कलरलेस। जो एल्यूरोस्पोर होता है वो डार्क पिगमेंटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं और ये एक स्पोर में 2 से 8 सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैथोजन है ये क्लेमाडोस्पोर भी बनाता है और इसका जो टीलोमॉर्फ स्टेज है वो है सीरेटोसिस्टिस। इसके जो माइसीलियम होते हैं वो हैं कलरलेस, ब्रांच्ड और सेप्टेड। ये देखिए, ये है इंडोकोनिडिया और ये एल्यूरोस्पोर जो कि सेप्टेट होता है और 2 से 8 सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। कमिंग टू डिजीज साइकिल, पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिज एज क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर के रूप में जो पैथोजन है वो सॉइल में प्रेजेंट है। फिर जब नेक्स्ट सीजन में प्लांट लगाया जाएगा तो उसके रूट में इन्फेक्शन करेगा, सिम्टम बनेगा। जो फंगस है वो पौधे में मल्टीप्लाई होगा और क्या बनाएगा, स्पोर्स। ये स्पोर्स जो है वाटर के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और डिजीज़ को फैलाते हैं। जो इसमें सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो केवल एल्यूरोस्पोर से होता है। फिर बाद में क्लेमाइडोस्पोर बनेगा और ये सॉइल में सर्वाइव करेगा। फिर ये अगले सीजन के लिए एज अ प्राइमरी इनोकुलम काम करता है। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में। जो सॉइल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 13 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। pH वैल्यू शुड बी एबव 5.5। कूल क्लाइमेट और हाई नाइट्रोजन डोज। कमिंग टू मैनेजमेंट, we should always adopt integrated disease management practices like crop rotation with non-host, sanitation of the field, maintain pH below 5.5 by applying gypsum। हमें जो फील्ड का pH है कितना चाहिए, 5.5 से कम रखना है जिससे कि जो डिजीज़ है वो ना आए। सॉइल सोलराइजेशन ऑफ नर्सरी, ये जो सॉइल सोलराइजेशन है उसमें क्या करते हैं, पहले लाइट इरिगेशन किया जाता है फील्ड में, उसके बाद इसको वाइट ट्रांसपेरेंट जो पॉली जिसका थिकनेस कम से कम 25 माइक्रोन का होना चाहिए, उससे ये जो मॉइस्ट फील्ड है उसको ढक देते हैं। और ये कब करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो महीने हैं जिसमें हाई टेम्परेचर होता है उस समय करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो सॉइल का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसमें जो भी पैथोजन है, पैथोजन के इनोकुलम प्रेजेंट हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड या वायरस कुछ भी है, वो मर जाता है। अप्लाई बायो कंट्रोल एजेंट लाइक ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ट्रेंचिंग विथ प्रोपिकोनाजोल। तो ये जो केमिकल है प्रोपिकोनाजोल, इसका सॉल्यूशन बना के हमें फील्ड में डालना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है टोबैको मोज़ेक।
This is caused by tobacco mosaic virus. Symptom: affected leaves show mottling or mosaic pattern of light green and dark green areas. ये मोल्टिंग नहीं है, ये मोटलिंग है, MOT. Newly formed young leaves also show symptom like wind clearing, greenish yellow mottling. Infection on young plant result in stunted growth, malformation, distortion and puckering of the leaves. इसमें क्या होता है, जो लीफ का शेप है वो बिगड़ जाता है. Dark green blisters and sometimes enations appear on the dorsal surface of the leaf. Immature leaves show varying degree of yellow mottling and chlorosis. मोटलिंग और मोज़ेक में एक डिफरेंस है, वो है कि मोज़ेक में ये जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के पैचेस हैं उनके बॉर्डर क्लियर होते हैं, लेकिन मोटलिंग में ऐसा नहीं होता. इन सीवियर इन्फेक्शन वेरियस नेक्रोटिक डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑल्सो डेवलप रिजल्टिंग इन मोज़ेक बर्न. जब जो वायरुलेंट स्टेन है TMV का, अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो उसमें लिप्स में नेक्रोसिस भी होती है, जिसे मोज़ेक बर्न कहते हैं. ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का. इसमें आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है, फिर से लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये ऐसे पैचेस बन जाते हैं. कमिंग टू द इटियोलॉजी, द टोबैको मोज़ेक वायरस जीनोम इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which is 6.4 kb. It means there are 6400 base of nitrogen in RNA. The particle shape is rigid rod shaped. Rigid rod means this is not flexible. The dimension is 18 into 300 nanometer and it contain 5% RNA and 95% protein. The transmission by contact, or we can say mechanical transmission. There is no insect which can transmit the TMB from one plant to another. Coming to the disease cycle, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर थोड़ा पॉज कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये जो डिजीज साइकिल है ये समझने में आसानी होगी. सो स्टार्ट करते हैं डिजीज साइकिल. वायरस सर्वाइव इन कोलेट्रल एंड वीड होस्ट, ऑल्सो इन ड्राई लीव्स. सो जो TMB वायरस है वो कहाँ है, कोलेट्रल होस्ट में, वीड होस्ट में, या फिर जो ड्राई लीव्स हैं उसमें भी. फिर जो वायरस यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है वो इंटरकल्चर ऑपरेशन के टाइम या कॉन्टैक्ट के द्वारा इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट में आ जाता है. फिर वो हेल्दी प्लांट में मल्टीप्लाई, फिर जो वायरस है वो सिस्टमिक हो जाएगा और प्लांट के पूरी बॉडी में मूव करेगा. सिम्टम डेवलप होगा, हमें कैसे दिखाई देगा, मोज़ेक. फिर जैसे ये प्लांट इन्फेक्टेड हो गया और यहाँ पे एक हेल्दी प्लांट लगा हुआ है, जब इन दोनों की पत्तियाँ आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट में ये जो वायरस है फिर से मूव कर जाएगा. या फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन जो टूल्स यूज़ किया जाता है उसके द्वारा भी ये जो वायरस है वो इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट में चले जाता है. तो इसी तरह से इसमें सेकेंडरी स्प्रेड होता है. कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी, डेंस प्लांट presence of virus. Coming to the management, we should always adopt the integrated disease management practice. Only select the disease free planting material. Infected seedlings should be removed. Workers should disinfect their hands with soap and running water before handling seedling, weeding or doing other interculture operation. Use of tobacco means smoking and chewing should be prohibited in seedbed or field.
Weeds should be removed from the field. Rotation with non-host for at least 2 years. Rogging of affected plant before first interculture of resistant varieties like TMV-RR2, TMV-RR2A, TMV-RR3. Spray the leaf extract of Bougainvillea bacilla on 30, 40 and 50th day after transplanting. इस वीडियो के लिए धन्यवाद. Please like and share my videos and do subscribe to my channel. To watch other videos, please click the link.